Now. Huh. Good afternoon, sir. Good afternoon to one and all. Myself, Dr. K. Shamla, Associate Professor and Chairman, Center for Child Rights, National University of Study and Research in La Ranchi. Welcome you all to the webinar on child rights in the dungeons during obscure lockdown. I will introduce you to the concept of the webinar and about the Center for Child Rights before introducing about the keynote speaker of the today's webinar, Mr. Priyank Kanongo, Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights. On 24th March 2020, when the Prime Minister of India announced the national lockdown, the entire country came to a standstill other than the essential supplies, medical services, and law and order enforcement agencies. Lockdown has been imposed as a restrictive measure, ordering the people to self isolate at home, imposing curfews, quarantines, social distancing norms to control the transmission of virus. The focus of the entire governance is concentrated on fighting with the COVID 19 pandemic. Schools, colleges, universities, religious places, and whatnot, everything was shut down. Stay home and stay safe is the slogan which is visible in every corner of the country. The national lockdown changed the path of lifestyles of the people, bringing it to almost a halt. The side effects of the lockdown impacted almost all sections of the society. Now, further, the economic falldown will be dependent upon the intensity of the COVID 19 outbreak, which is still unpredictable. The significant reduction of economic activity led to massive impact on the socio-economic status of the middle class, lower middle class, and below poverty line sections of the population. This collapse in the income threatened the livelihoods of millions of households, impacting in terms of health, education, survival, lack of basic essentials, leading to their further exploitation. Among all these sections of the population, children are the most vulnerable sections as COVID 19 is having direct and indirect impact on them. The children were spared from the direct impact of the COVID 19 pandemic by closing down the schools and all other coaching institutions and keeping them with their own families. There may be a general impression that children are with their family, hence they are in safe hands. But the indirect effect of COVID 19 on children is severe and may have a serious impact on children in long run in different ways. According to United Nations, during the national lockdown, children are affected in multiple ways, falling into poverty, worsening the learning crisis, threats to child survival and health, risks for child safety in terms of sexual exploitation, trafficking, etc. In these difficult situations of COVID 19 and national lockdown, children are stuck in one or the other type of challenge. Some are struggling for survival, fighting with hunger. Some are struggling because of the migration of the families. Some are struggling to cope up with the changing lifestyles due to the lockdown. Keeping in the context of COVID 19 in mind and the areas of thirst relating to children during the national lockdown, the webinar identified three thirst areas which are required to be focused upon with an immediate urgency. First, street children who are homeless, orphans, or semi orphans. Second, children of migrant labor. And third, children of below middle class, and above. Each category has their own challenges to deal with during the national lockdown. First category, the street children who are homeless, orphans, or semi orphans led their life by fending themselves through petty works. With 472 million children, India has the largest child population in the world, and statistics states that lockdown impacted around 40 million children.
These include those working in farms and fields in rural areas, as well as children who work as rag pickers in cities or sell balloons, pens, and other knickknacks at traffic lights. The children who are in cities are the worst affected. With no means of own survival during lockdown, they are looking for assistance. No work and no money. These children are deprived of shelter and food. The parents, caregivers are also helpless in providing basic needs to these children. These children are fighting parallelly for survival as well as with COVID-19 virus. They do not have any literacy about COVID-19 and required sanitation conditions to protect themselves from the pandemic. The problems faced by this first category of children during COVID-19 and national lockdown are: first, no work, no food. Though governments and NGO organizations are working hard to reach out to these children to provide them food, still news reports shows that there are children who are not able to meet at least one time meal in a day. No street hotels, no money and no support from family or caregivers. Second, they do not have shelters and sleep on platforms or in juggies. No sanitization and protection from being exposed to COVID-19 virus. There is no education to these children about going on scenario of pandemic and safeguard measures required to be followed. Third, these children are deprived from school education as these kids do not have any means to attend the online courses. These children whose parents are laborers understand that there are no three-time meals per day and parents lost their daily wages. Loss or reduction in household income or lack of opportunity to work creates a physical and mental stress on the children. Now, coming to the second category, sir, that is children of migrant labor. These children don't know why parents are walking for hundreds of kilometers. No chappal, no food, and no water. Walking for hundreds of kilometers in scorching heat of summer, these children lost their school's daily routine and does not know how COVID-19 is changing their lives. Again, the needs of these children are also similar to that of street children, but in different context. First, these children are struggling for survivability due to the lack of food and other facilities during their journey back to their native places. Second, as the migrant laborers are moving in groups, there is a high possibility of being exposed to COVID-19. Third, changing demography of their family, that is socio-economic fall down of their family status, unemployment in the parents or caregivers, possible quarantine or isolation of the parents or caregivers are few appealing problems among many which these children are to face. Fourth, as like the first category of children, these children are also deprived of education as there is no equipment with them to attend the online teaching. Further, as they are in travel, otherwise also these children are depriving of their education. Now coming to the third category, sir, these children are belonging to the below middle class or above. No doubt, economic slowdown which affected the families of these children create a psychological stress upon these children. As parents or caregivers often discuss about the economic difficulties faced by them during lockdown. Further, these children, though are under the care and protection of families or caregivers, still there are statistics which shows that there is increasing exploitation abuse on these children. Further, these children are also suffering due to the distracting distancing with the parents or caregivers who are to go for isolation or quarantine. These children include the children of the police, doctors who are in the constant danger of being exposed to the COVID-19 pandemic. These children are also exposed to the danger of side effects of continuous online activity. The challenge before us is how to reach out to these children and ensure their safety and protection. How to ensure right to food, right to health, right against exploitation to these children. Crime against children during the lockdown is spreading under the mat, unreported. These children, who are the future of India, if not protected from early age exploitation and abuse, the next generation may not see the healthy citizens. With this brief introduction, let me introduce you all to the contribution of Center for Child Rights to the NUSRL Ranchi to the cause of the child rights and child protection in the state of Jharkhand. The Center for Child Rights of NUSRL Ranchi is functioning from last 3 years in the state of Jharkhand on various issues of child rights and child protection in collaboration with UNICEF.
As part of the center's activity, we conducted various state level training programs, consultations, review meetings for the personnel dealing with the children in Jharkhand, such as paralegal volunteers, village level child protection committees, child welfare committees, JJB members, police personnel, medical professionals dealing with the POXO cases, counselors, etc. Further, the Center for Child Rights also conducted various studies such as mapping the standards of care in the observation homes, children homes, tribal ashram shalas, and also the functioning of the child-friendly police stations. By partnering with UNICEF and Enfold, the center also mapped the services provided to the victims of POXO at Sadar Hospital, Ranchi. The reports of these studies were shared with UNICEF and the state of Jharkhand for improving the standards of care and protection for the children of Jharkhand. The Center for Child Rights is conducting various activities to ensure the safety and protection of children in Jharkhand against trafficking, sexual exploitation of children during the national lockdown. As part of such efforts, the Center for Child Rights approached Mr. Priyank Konango, Chairperson, National Commission for the Protection of Child Rights, to be the keynote speaker for this today's webinar. Without any second thought, Sir gave his consent amidst his busy schedule. Thank you very much, sir. This shows Sir's commitment to the cause of child rights. We are obliged and thank you to you, sir. I now take the privilege to introduce you all to the today's keynote speaker, Mr. Priyank Kanango, Chairperson, National Commission for the Protection of Child Rights. Mr. Priyank has worked throughout his career as one of the leading voices of child rights in India and abroad. He has worked in the field for quite long now and has provided the essential recourse to the children in ensuring their rights. Now I request Mr. Priyank Konango to address the gathering. Sir, please. Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me in this webinar. And I must thank to the students who contacted me on behalf of the university to come here as a keynote speaker. Thank you so much. जैसा आपने बताया डॉक्टर साहब कि विदाउट एनी सेकंड थॉट आई सडनली एग्रीड कि मैं इस वेबिनार में आ रहा हूँ. सो बहुत ही फ्रैंकली मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, ये जो कॉन्सेप्ट नोट इस वेबिनार के लिए मुझे भेजा गया, हालांकि मैं इस कॉन्सेप्ट नोट की सभी बातों से पूरी तरीके से सहमति नहीं रखता, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसी कॉन्सेप्ट नोट के साथ यहाँ आना इसलिए उचित समझा क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स के बीच बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को ये अधिकार है, ये महात्मा गांधी कहा करते थे कि स्टूडेंट्स को कभी भी आप उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करके छोड़िए मत, उनके अंदर जो भी क्यूरियोसिटीज है उनका श्रवण करिए, उनसे उस बारे में बात करना बहुत जरूरी है. कोई भी विषय ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में जिस पर बात ही ना की जाए. हमारी किसी विषय पर मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन बात होना उस पर बहुत जरूरी है क्योंकि सही बात तो सारी तरीके की बातों के सामने आने से ही निकलेंगी. लॉकडाउन के दौरान कई सारी चीजों में जो चीज बार बार देखने को आई और आज इस वेबिनार में भी जिस पर बात हो रही है, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल एब्यूज केसेस. तो मैं आप लोगों को बीच में कुछ सवाल हैं जो छोड़ना चाहूंगा और फिर कुछ उसके उत्तर है जिस वेबिनार में हम लोग निकल के आए. दूसरा सवाल जो इस वेबिनार में है वो है राइट टू एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. तीसरी बात यह है कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके बच्चों की जो स्थिति है, जिस तरह के दृश्य हम लोगों ने सारे देश में देखे कि क्या इन बच्चों के चाइल्ड राइट्स, इन बच्चों के राइट्स के लिए इंस्टीट्यूट्स जो अथॉरिटीज हैं वो कर पा रहे हैं. सबसे पहली बात तो हम करेंगे उन बच्चों की जिनके बारे में लगातार ये बात हो रही है कि सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और रिपोर्टिंग नहीं हो रही. मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा. इसी महीने में, अप्रैल के महीने में, यूनिसेफ ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की और उस वर्कशॉप के समापन के बाद ये डेटा सामने आया कि 92,000 बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ देश में, जो कि चाइल्ड लाइन को रिपोर्ट किया था. हिंदू की रिपोर्ट थी, ये पीटीआई की रिपोर्ट थी. हमने इस पर कॉग्निजेंस लिया
और इस पर बातचीत करना शुरू की, क्योंकि अगर लॉकडाउन के 11 दिनों के भीतर का जो वो डाटा था कि 92,000 बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन रिपोर्ट हुआ है, तो ये बहुत ही खतरनाक बात थी। हमने सभी स्टेक होल्डर से इस बारे में बात करना उचित समझा। हमने चाइल्ड लाइन से भी बात की, तो बहुत ही रोचक बात ये पता चली कि चाइल्ड लाइन ने ऐसा कोई डेटा कभी दिया ही नहीं है, और ये चाइल्ड लाइन के हवाले से एक गलत खबर छापी गई, जिसको चाइल्ड लाइन ने अपोज किया। उन्होंने द हिंदू को और पीटीआई को बकायदा लिखा है कि आप इस डेटा को ठीक करिए। असल में वो 11 दिन के दौरान 178 केसेस इस तरीके के चाइल्ड लाइन के पास आए थे, जिसको 92,000 बताया गया गलत तरीके से। तो बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं, वो जगह हमको देखना होगी देश में। अगर इस तरीके के नैरेटिव्स पे हम लोग चलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे घरों में सुरक्षित नहीं हैं। अगर बच्चे घर में सुरक्षित नहीं है, तो बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं, वो जगह तो फिर हमको ढूंढनी पड़ेंगी देश में। भारत में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन लास्ट रिसोर्ट माना गया है किसी भी बच्चे की वेलबींग को इंश्योर करने के लिए। बच्चे को सबसे पहले उसकी फैमिली के साथ ही सुरक्षित वातावरण में रखा जाएगा, ऐसा जेजे एक्ट बोलता है, ऐसा पॉक्सो एक्ट, मतलब भारत में जो भी कानूनी प्रावधान है, वो सभी बच्चे के लिए जो बेस्ट प्लेस है वो उसका परिवार मानते हैं। अब अगर हम ये मानेंगे कि सारे बच्चों के साथ परिवार सुरक्षित जगह नहीं है, तो सारे बच्चों के साथ तो ये बात ठीक नहीं। असल में इस वेबिनार में भी यही बात कही गई थी कि हमको बॉटल नेक्स पे चलना है, और जब हम स्टूडेंट्स के बीच में बात कर रहे हैं, आप सभी लोग वकील बनकर, कोई जज बनकर इस देश में प्रैक्टिस करेंगे, विभिन्न हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी कुछ लोग जाएंगे, तो हमको बॉटल नेक्स पे तो बात करनी ही चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, दुनिया में चाइल्ड राइट्स के लिए जो चैंपियन कंट्रीज माने जाते हैं, उनमें तो एक कानून ऐसा भी है कि एक सर्टेन एज के बाद, 8 साल 9 साल की एज के बाद, बच्चा अपने माता पिता के साथ बेडरूम शेयर नहीं कर सकता। अगर बच्चा अपने माता पिता के बेडरूम में सोएगा, तो ये माना जाएगा कि वो सेक्सुअल एब्यूज के लिए वल्नरेबल है और वो अपने एक्सप्लॉइटर के साथ सो रहा है। तब ऐसी स्थिति को अगर हम भारत में रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, तो भारत में हाउस होल्ड्स, जैसा अभी मैडम ने बताया, हमारे यहाँ तो 40 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। अब आप सेंसस का डाटा उठा के देखेंगे, जब हमारे हाउस होल्ड कितने हैं, बच्चे कितने हैं, क्या हम हर एक बच्चे को एक अलग कमरा दे सकते हैं इस देश में? नहीं दे सकते हैं। तो जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन साधन है, उसके अनुसार ही हमको अपने यहाँ बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना होगा। जिस तरीके की वैल्यूज, जिस तरीके का कल्चर भारत में है, उसके अनुसार हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं, उसके अनुसार ही हमको उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन्स है, वो हमारे दिमाग में ना रहे, खासतौर पर तब जब हम समाज में चाइल्ड राइट्स के एक्सपर्ट के रूप में जाएं या एडवोकेट के रूप में जाएं, तो हमारे दिमाग में इस तरीके की कंफ्यूजन ना रहे, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, आप लोग झारखंड में काम करते हैं, ये स्टूडेंट्स पूरे देश के यहाँ पर है। मैं झारखंड के ही प्रोस्पेक्टिव में एक केस स्टडी आपके बीच में और रखना चाहूंगा। आप सभी को ध्यान होगा कि कि बच्चों को अगर सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, तो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 19 ये बोलता है कि उसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग पुलिस को होनी चाहिए। अगर मैंडेटरी रिपोर्टिंग पुलिस को नहीं हो रही है, या एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है, या उस पर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर तो ये चाइल्ड राइट का वायलेशन है, और ये बहुत ही गंभीर बात है। हम झारखंड की बात करते हैं, पूरे देश में कहीं नहीं करते। ये बातें जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं, वो अगर नोट करेंगे तो उनको आगे चल के काम आने वाली है। मैं एक बहुत ही अनोखा केस आपके बीच में यहाँ रखने वाला हूँ, जो आपको काम आएगा आगे चल के बात करने में, खास तौर पर नॉन रिपोर्टिंग को लेके। आप लोगों को ध्यान होगा 2018 में झारखंड के एक चिल्ड्रन होम में, जो मिशनरी ऑफ चैरिटीज द्वारा चलता था, वहां पर बच्चों को ट्रैफिक करने का मामला सामने आया था। कुल मिला के एडॉप्शन के नाम पे बच्चों को बेचा जा रहा था। उसकी इंक्वायरी कमीशन ने भी की थी, मैं उस वक्त मेंबर था कमीशन का, मैंने भी उसकी इंक्वायरी में पार्टिसिपेट किया था।
तो कुछ फैक्ट्स उस केस से जुड़े हुए आज आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूंगा और उसके बाद की कहानी भी। हम लोगों को कई सारे ऐसे मामले इस जांच के दौरान मिले जहाँ पे वो बच्चे जो जो कि ट्रैफिक किए गए अडॉप्शन के नाम पे, उनकी माँ भी नाबालिग थी, 18 साल से कम एज की थी, जिनको वहां रखकर डिलीवर किया गया। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने तब प्रकाश में आया जब झारखंड के ही एक जिला दुमका में हम लोग एक बेंच कंडक्ट कर रहे थे। उस दौरान हमको ये बात पता चली कि बच्चे ने प्रेग्नेंट होने के बाद अपने माता पिता को ये बात बताई। माता पिता ने ये बात जाकर के उस चिल्ड्रन होम को बताई। चिल्ड्रन होम ने उस प्रेग्नेंट लड़की को अपने यहाँ रख लिया। उसको डिलीवर होने के बाद उसके बच्चे को तो उन्होंने अडॉप्शन में दिया, जो सीधे सीधे ट्रैफिकिंग थी, लेकिन उस लड़की को जिसका वो बच्चा था उसको वापस उसके माता पिता को सौंप दिया, तबकि जब वो 18 साल की एज के कम थी। ये सीधा सीधा पॉक्सो का वायलेशन था। इस मामले की इंक्वायरी कमीशन ने की, इस मामले की इंक्वायरी सीआईडी ने की, हजारों पेजेस की चार्जशीट्स बनी और सारा मामला कोर्ट में गया। झारखंड का हाई कोर्ट भी इस पर कॉग्निजेंस लिए हुए था और कई सारी चीजें इस केस में हुई। लेकिन जब हमको ये बात पता चली तो इंडिविजुअल इस केस में पॉक्सो की एफआईआर हुई या नहीं हुई, ये हमने जानना चाहा। मजे की बात यह है कि जब सीआईडी ने इंक्वायर किया तब इस विक्टिम बच्ची के स्टेटमेंट भी लिए गए, सीआईडी के पास जमा हुए, लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। ऐसी सैकड़ों लड़कियां जो कि नाबालिग होते हुए प्रेग्नेंट हुई, जिनका रेप हुआ था और उनको डिलीवर कराया गया, लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं हुई पॉक्सो एक्ट के अंदर। ये तो सीधा सीधा अथॉरिटीज ने, पुलिस अथॉरिटीज ने और कानून का जिनको पालन कराना था उन अथॉरिटीज के एंड पे एक बहुत ही बड़ी चूक थी। जब आयोग ने, नेशनल कमीशन ने ये पाया कि ये चूक तो सैकड़ों बच्चों के साथ हुई है और ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से, इस तरीके की इनसेंसिटिव और अनसेंसिटाइज्ड जब हमारे पास अथॉरिटीज काम कर रही हैं तो उनके बीच में बात को समझाना। कमीशन पहली बार अपने इंसेप्शन के बाद से 2005 में सीपीसीआर एक्ट बना और 2007 में पहली बार कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और उसके बाद से लेके अभी तक पहली बार सीपीसीआर एक्ट का एक सेक्शन 15 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 15 में कमीशन किसी मामले को लेके एप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो सेक्शन 15 का हमने पहली बार इस्तेमाल किया। हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इंक्वायरी हो जिसमें इन सब बच्चों को न्याय मिल सके। तो जो हम बात करते हैं नॉन रिपोर्टिंग की, तो यहाँ तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म में आने के बाद सरकार की टॉप अथॉरिटीज जिसमें एसपी डीएम सब शामिल है, सबको पता होने के बाद भी केसेस रिपोर्ट नहीं। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा यहाँ पे। नवोदय विद्यालय हमारे देश के प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट माने जाते हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सीधे कंट्रोल के अंदर इनको चलाया जाता है, नवोदय विद्यालय समिति। और आप सभी ने, कुछ बच्चे उसमें से पढ़ के भी आए होंगे, सभी ने उसके बारे में सुना होगा। हमारे पास एक केस रिपोर्ट आया नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट से कि बच्चे को मोलेस्ट किया उसके प्रिंसिपल ने, और प्रिंसिपल की उसने कंप्लेंट की अपनी हाउस मदर को, हाउस मदर ने वो कंप्लेंट की अथॉरिटीज को, और वो कंप्लेंट आखिरकार रीजनल ऑफिस जो था नवोदय विद्यालय समिति का वहां तक पहुंची। रीजनल ऑफिस ने कमेटी बनाई, वो कमेटी इंक्वायर करने गई। उस इंक्वायरी में उन्होंने उस टीचर को, उस प्रिंसिपल को गिल्टी पाया और उसका ट्रांसफर वहां से रिकमेंड किया। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? एक जो आदमी बच्चे के साथ अब्यूज करता हुआ आपने गिल्टी पाया है, आप उसका ट्रांसफर रिकमेंड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि उसको आप पुलिस में एफआईआर कराते। इस मामले में सीडब्ल्यूसी को भी जानकारी थी। सीडब्ल्यूसी वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द इंक्वायरी। जब ये मामला कमीशन के पास आया, मजबूरी में हमको एसपी को लिखना पड़ा और बच्चे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आप देखिए, जब हम मजबूर तब हुए जब जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज पहले स्टेज पे थी वो सब फेल हो गए।
सबके फेल होने के बाद हमको मजबूर होना पड़ा और हमें आगे बढ़ के उसमें एफआईआर लॉन्च करानी पड़ी। और ये जितनी अथॉरिटीज रीजनल ऑफिस से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के थे, सब उस मामले में सेक्शन 21 पॉक्सो के अंतर्गत एक्यूज्ड बने। तो ये मामले हैं कि आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में भी तो बच्चे के साथ हुए एब्यूज की रिपोर्टिंग को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि घर में बच्चों के साथ एब्यूज होता है तो रिपोर्ट नहीं होता। देखिए, ये बात हम शुतुरमुर्ग की तरह अगर अपनी गर्दन को छुपा ले तो ये तो नहीं है कि बच्चों के साथ घर में एब्यूज नहीं हो रहा है। लेकिन ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब सारा परिवार घर में है, मैं फिर कहता हूँ, जब सारा परिवार घर में है, तब बच्चे की सुरक्षित होने के चांसेस भारत जैसे देश में बढ़ते हैं बजाय कम होने के। हमें अपने दिमाग में ये स्पष्टता रखनी ही पड़ेगी। हम हर बच्चे को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म में सुरक्षित नहीं रख सकते। मुजफ्फरपुर हो या देवरिया हो, चिल्ड्रन होम्स की हालत किसी से भी देश भर में छुपी नहीं है। नेशनल कमीशन ने देश के 7,164 चिल्ड्रन होम्स को सोशल ऑडिट कराया, और उसके बाद हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, एक भी होम देश में ऐसा नहीं है जिसमें हमने छोटी या बड़ी कोई कमी ना पाई। हो सकता है कहीं पर केवल इतनी कमी हो कि उसका फ्लोर स्लिपरी हो, और कहीं पर हमको ऐसी कमी भी मिली, जैसे यहाँ पर ये भी आप लोगों को जानने की बात है कि देश का सबसे प्रीमियर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इस्टेब्लिश किया था अपने खुद के घर में इलाहाबाद में, उसमें जब हम लोगों ने रिपोर्ट में पाया कि बहुत ही इरेगुलरिटीज हैं, इनफैक्ट उसका विजिट करने में हमको खुद को जाना पड़ा। वहाँ अथॉरिटीज विजिट नहीं कर पा रही थी। 19 बच्चे वहां पे थे, एक भी बच्चे को वहां रखने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का ऑर्डर नहीं था। तो हम किस तरीके के इंस्टीट्यूट्स में बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने की बात कर सकते हैं। देश के 40% जिलों में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटीज काम कर रही हैं, केवल 60% डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटीज से महरूम है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि कम से कम झारखंड में सारी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटीज को ठीक तरीके से काम पर लगाने में उनकी प्लीज मदद करिए। एक और चीज जो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करनी चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जितनी भी बच्चों की वेलबींग इंश्योर करने की, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी की, या वे बच्चे जो परिवार की सुरक्षा से महरूम है, चाहे वो स्ट्रीट्स पे हो, चाहे वो ऑर्फनेजेस में हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हो, ये सारी जिम्मेदारी अथॉरिटीज खुद पर लेना नहीं चाहती। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं ये नहीं कहता कि सारी अथॉरिटीज एक सी हैं, लेकिन अथॉरिटीज ये अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और कम से कम 15-17 जिले स्टेट्स तो देश की ऐसे हैं जहाँ पे हमने इस मामले में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे हो, नॉन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए क्या पॉलिसी हो, ये सारा कुछ एनजीओ के भरोसे छोड़ दिया है। देखिए, एनजीओ देश के डेवलपमेंट पार्टनर होते हैं, देश के भले के लिए काम करते हैं, लेकिन जो काम अथॉरिटीज का बाय एक्ट है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, बाय लॉ है, वो तो उनको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप सभी का एज लॉ स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये समझना कि किस अथॉरिटी का क्या काम है और उसको उस काम पे लगाने के लिए प्रेरित करना। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने ये सारा का सारा जो दुनिया है चाइल्ड राइट्स की, ये एक्टिविस्ट के भरोसे छोड़ दिया है। इसमें चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर से लेकर के जो थाने में होता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट तक, स्टेट कमीशन तक, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी तक जो जिम्मेदारियां हैं, वो सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी पालन कराने के लिए भी हम एनजीओ के भरोसे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। एक बच्चे को भीख मांगते हुए मैंने मेरे से पास वो भीख मांगता हुआ आया, मैंने उससे बात की। उसने मुझे बताया कि जी फलाना आदमी मेरे से पैसे लेता है जो मैं इकट्ठे करता हूँ,
और ये पूरा का पूरा जो पैसा है मैं उसको देता हूँ, फिर वो उसमें से कुछ पैसे मुझे देता है। मैं उस बच्चे को लेके थाने गया। हर थाने में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होता है, ये बहुत ही थ्योरेटिकल बात है। और 26,000 थाने और पुलिस चौकियां देश में है, जिनमें सारे में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है। मैं कमीशन में काम कर रहा हूँ जब, तब एक थाने में गया हूँ। थाने में जाकर पूछता हूँ कि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर से मुझे मिलना है। साहब आधे घंटे इंतजार करने के बाद एक बुजुर्ग से व्यक्ति मेरे पास आए। मैं कहा ये बच्चा जो है भीख मांग रहा था, इसको फलाने आदमी ने बुराई किया भीख मांगने के लिए। आप 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट ले लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट चाइल्ड लेबर 70 JJ 79 और चाइल्ड लेबर का इसमें ऑफेंस आ रहा है, आप एक एफआईआर कर लीजिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है दोनों के दोनों। तो वो मुझसे बोलता है जी मैं तो एफआईआर नहीं करूँगा। मैं आप यकीन मानिएगा कि उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को वहां पर आना पड़ा, तब जाकर उस मामले में एफआईआर हुई, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वो एनजीओ वाली बहन भी जो बताएंगी मैं तो वो करूंगा। एनजीओ जिन बहन जी का था और जो एक्टिविस्ट वहां पे काम कर रहे थे, वो समहाउ जेजे एक्ट तब 2015 का नया नया इनेक्ट हुआ था, समहाउ वो अनअवेयर थे। मुझे उनको 1.5 घंटा लगा सेक्शन समझाने में। वो अपने माइंडसेट से काम कर रहे थे। 59 साल एज थी उस पुलिस वाले की, जिसने मुझसे साफ साफ ये कह दिया कि देखिए साहब ऐसा है, 6 महीने रिटायरमेंट बचे हैं, अब एक नया एक्ट तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमीज है वहां पे सही सही इंफॉर्मेशन उन पुलिस ऑफिसर्स को मिले जो आगे जाके काम करने वाले हैं। आप लोग एक डेटा खुद निकाल के देखिए कभी, चाहे झारखंड का निकालें, चाहे पूरे देश का, चाहे जहां जहां आप डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो वहां का निकालिए। चाइल्ड लेबर कॉग्निजेबल ऑफेंस है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएलपीआर एक्ट। कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि जहां आपको चाइल्ड लेबर मिलेगा वहां आपको उसकी एफआईआर तो दर्ज करनी ही पड़ेगी। लेकिन संज्ञेय अपराध होने के, जैसा कि मेरी समझ है, लेकिन संज्ञेय अपराध होने के बावजूद चाइल्ड लेबर के मामलों की एफआईआर देश में नगण्य है। हजारों में भी नंबर नहीं है, सैकड़ों में है। कारण क्योंकि पुलिस वाले ये बात मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि इसमें एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग एकेडमीज के मॉड्यूल्स में अभी तक हम इन चीजों को प्रॉपरली इंसर्ट नहीं कर पाए हैं कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सबसे पहले जो है एफआईआर होना है। उसका कारण है, हमको कारण पे जाना चाहिए। कारण ये है कि जो आदमी मॉड्यूल बना रहा है उसको हो सकता है चाइल्ड राइट्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन सीआरपीसी के बारे में नहीं जानता हो। तो हमको प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए। और जो 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 पुलिस ट्रेनिंग का तरीका है उसको उसी तरीके से ही कंडक्ट करानी चाहिए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कोई पुलिस वाला मुझसे ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ एज चेयरपर्सन ऑफ कमीशन, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। अगर एज सोशल वर्कर में बात करता हूँ किसी जज से, किसी जुडिशरी के आदमी से, तो मेरी बात वो उतनी नहीं मानेंगे जितनी वो मानेंगे बात एक प्रोफेसर की जो जुडिशियल एकेडमी में है। तो हमको ये सारी की सारी बातें जो कि लागू करवानी है जमीन पर, उनको उस रूप में ले जाना, ये हमारे पास एक आज भी बड़ा चैलेंज है। देखिए, एक एक ऑन लाइटर नोट में एक बात यहाँ पे आप लोगों के बीच में छोड़ के जाना चाहूंगा, जिसको आप लोग विचार करना बाद में। भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया? कब ये तय हुआ कि हमको ट्रस्ट एनजीओ सोसाइटी बन के काम करना चाहिए? 1860 में। 1857 का जब भारत का पहला स्वतंत्र समर था जिसको ब्रिटिशर्स ने दबाया, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मर्जर हुआ और इंग्लैंड की रानी भारत की मालकिन हो गई, और उन्होंने फिर नए तरीके से लेजिस्लेशंस बनाने शुरू किए। तो शुरुआती कानून था 1860 में जो आया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। हम बहुत अच्छे से समझ लें, जो काम सरकारें नहीं करना चाहती थी उन कामों को करने के लिए, या नहीं कर सकती थी, उन कामों को करने के लिए उन्होंने जिम्मेदारी सोसाइटीज को दी। हमको इस पूरे के पूरे ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज की भी अगर हम यहाँ बात करें तो भारत कंट्रीब्यूटिंग स्टेट है। हम जितना उनको कंट्रीब्यूट करते हैं उससे कम वो लोग भारत में खर्च करते हैं। दे शुड बी पार्टनर।
उनको पार्टनर होना चाहिए और देश के कॉन्टेक्स्ट में हमको मॉड्यूल्स डेवलपमेंट और जो लेजिस्लेशन है उनके पालन की बात करनी चाहिए। हम सारा कुछ यूरोप से इंपोर्ट करके देश में नहीं चला सकते। ये आप सभी लोग जब प्रैक्टिस करेंगे एक एडवोकेट के रूप में तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और ये सारी की सारी बातों के बीच हम टॉपिक पे भी आते हैं। टॉपिक जो हमारा आज का है, तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही संभावना देखते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि हमको लॉकडाउन में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए, एक पॉजिटिव नोट पे चलना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, देखिए मैं आपके बीच में 4 बातें रखना चाहूंगा, केवल एक 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर के लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद देश में एक सक्षम कानून बनाने में सफल हो पाए। उस कानून में जब नो डिटेंशन पॉलिसी पर चेंज किया गया, जब नो डिटेंशन पॉलिसी को अमेंड करने के लिए स्टेट्स को ये लिबर्टी दी गई, यकीन मानिए मैं बहुत ही ईमानदारी से आपके बीच में बात रख रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा दुख था कि हम कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लागू नहीं कर पाए। उसके पीछे बहुत सारी कारण है और एक अच्छी खासी केस स्टडीज आपको उस पर मिल सकती हैं कि क्या क्या गड़बड़ हुई थी। उसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन बात करिएगा जरूर उसके बारे में भी किसी से। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को हम लागू नहीं कर पाए थे और नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने निर्णय लिया। लेकिन देखिए जब नियति करती है तो बच्चे इस बार भी बिना परीक्षा दिए प्रमोट हुए हैं। और कहीं ना कहीं देश भर में जब नई शिक्षा नीति को बनाने की बात चल रही है तो फिर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लागू करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और परीक्षा को कम से कम वेटेज दिए जाने की तरफ हम दोबारा चल पड़े हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट को बहुत ही उसकी सही भाव के साथ लागू करने के लिए ये एक मौका हो सकता है। दूसरी बात, हम लोग हम लोग पीपल टीचर रेशो की बात हमेशा करते थे कि बच्चे ज्यादा हैं क्लासेस में, स्कूल कम है। जैसे स्कूल में टीचर्स कम है, कमरे कम है, बच्चे ज्यादा हैं। इसकी तरफ भी हम हल की तरफ बढ़े हैं, हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़े हैं। इस लॉकडाउन के बाद, इस कोविड इफेक्ट के चलते जब स्कूल खुलेंगे, जब भी स्कूल खुलेंगे, तब ये हमको मानना चाहिए कि कुछ दिन तक हमको इस कोरोना महामारी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अब क्लासरूम्स में बच्चों की सीमा नियंत्रित होगी, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स आएंगे, हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे, हमको बस्ते का बोझ कम करने का एक अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए उन बच्चों के समक्ष एक चुनौती है जो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं जा सकते। 68 इस वक्त देश के 38% जो बच्चे हैं वो केवल प्राइवेट स्कूल में है। 62% बच्चों को देश के सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं। देश में 3.5 लाख जो है केवल प्राइवेट स्कूल है। आज भी 11.5 लाख के आसपास सरकारी स्कूल है जहां पे हमको इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा पढ़ाने की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और आप पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से इस तरफ बढ़ सकते हैं अब कि वैकल्प बच्चों के टीचर का विकल्प एक एक इंटरनेट के द्वारा या ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा पहुंचना नहीं बन सकता। दूसरी बात जो बहुत पूरे देश में भयानक रूप से उठी कि ऑनलाइन एजुकेशन, भाई ये गर्मियों की छुट्टी का टाइम है। 70% देश के भागों में इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो बच्चों को छुट्टी एंजॉय करने दीजिए। देखिए दुनिया में जब आपदाएं आई हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, सेकंड वर्ल्ड वॉर आया, सालों साल बच्चे स्कूल नहीं गए। लेकिन स्कूल ना जाने के बाद यूरोप पूरी दुनिया में तरक्की के मामले में कहाँ पहुंचा। तो हमको ये देखना चाहिए कि बच्चों को भी तो उनकी जिंदगी जीने के ये 2-4 महीने अगर मिल गए हैं लॉकडाउन के, उनको खुशी से जीने दीजिए। क्या ऑनलाइन एजुकेशन का प्रेशर उन पर डालेंगे आप? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और ये मैं तो बिल्कुल इस बात का सख्त पक्षधर हूँ कि बच्चों को उनके हिसाब से डेवलप होने के लिए ये एक अवसर है और उनको स्वतंत्र छोड़िए, प्लीज उनको प्रेशराइज मत करिए। दूसरी बात,
पीयर लर्निंग को लेकर हम लोग बहुत थ्योरेटिकल बातें दुनिया भर से करते आए हैं और भारत में कैसे इम्प्लीमेंट हो इस पर सोचते आए। ये एक मौका है। टीचर्स हमारे पास अगर कम है, हम पीयर लर्निंग में बच्चों को सीखते हुए बड़े बच्चे सीख सकते हैं, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये इन मॉडल्स के इम्प्लीमेंटेशन का बहुत सही समय है। इसको हमको अभी एक्सपेरिमेंट करके देखना है और ये जो लॉकडाउन का समय है, ये इसकी तैयारी का समय है। इस वक्त हम इसकी तैयारी करें, जिससे कि जब हम लॉकडाउन के बाद निकलेंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर कर पाएंगे। स्कूल के घंटे, बस्ते का बोझ, कितनी सारी चीजों से लड़ने के लिए हमको अवसर मिला है। स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। देखिए, नेशनल कमीशन ने लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही एक एडवाइजरी इशू की पूरे देश के लिए, और हमने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि किसी भी बच्चे को सड़क पे इस वक्त नहीं होना चाहिए। और हम काफी हद तक इस मामले में सफल हुए हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, जो हमारा मैकेनिज्म है, जो हम देश भर के एनजीओ से बात करते हैं या हम हमारे स्टेट कमीशन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, कई जगहों से बच्चे शेल्टर्स में गए हैं, बच्चे घरों में गए हैं, बच्चे अपने परिवार के साथ हैं या तो पूरा परिवार शेल्टर में गया है। लेकिन सड़क पे होने वाले बच्चों की संख्या में देश के इतिहास में पहली बार एक सिग्निफिकेंट कमी आई। और अब हमको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का। मैं आपको यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान का एक वाक्य भी बताना चाहूंगा। एक एनजीओ ने मुझको वीडियो पोस्ट किया बच्चों को सड़क पर खाना खिलाते हुए। आप यकीन मानिए, रात को 9 बजे उस इलाके के डीसीपी, एसीपी सभी लोगों को परेशान होना पड़ा आयोग के इंटरवेंशन के बाद। कैसे हो सकता है कि आप लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया को सुरक्षित करने में चले हैं, तब आप बच्चों को सड़क पे खाना खिला रहे हैं? तब पता चला कि शेल्टर से उन बच्चों को निकाल के ला के बाहर खाना खिलाया जा रहा था। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बच्चों को वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं लाना चाहिए। उनको खाना देना है, शेल्टर को दे दीजिए, सूखा राशन दे दीजिए। खुद को भी एक्सपोजर से, खुद को भी वल्नरेबल सिचुएशंस में जाने से बचना चाहिए। बच्चों को शेल्टर के बाहर नहीं लाना चाहिए। और ये हम सबको सामूहिक रूप से समझना होगा। हम सफल हुए हैं। अभी जो हमने मैकेनिज्म बताया था, उसमें हम लोगों ने कहा कई जगह पे उसका कानूनी रूप से पालन होने की तरफ भी हम बढ़ सके हैं कि जो भी शेल्टर्स में लोग आए हैं उनका रिकॉर्ड बना है। अब रिकॉर्ड बना है तो ये रिकॉर्ड काम आएगा पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशंस में। हमको इन बच्चों को वापस सड़क पे आने से रोकना है, वापस स्ट्रिक्ट सिचुएशन में आने से रोकना है। देखिए, यहाँ पे एक चीज कानून के विद्यार्थियों को समझना बहुत जरूरी है। जो बच्चा सड़क पे है वो सीएनसीपी है। जो बच्चा सीएनसीपी है उसको सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस किया जाना है। सीडब्ल्यूसी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ये ऑर्डर करने के लिए एक सक्षम संस्था है कि उस बच्चे की फैमिली को क्या क्या फैसिलिटीज सरकार की तरफ से, किन किन चीजों के लिए वो इंटाइटल्ड है, राइट टू फूड के अंदर किन किन चीजों के लिए इंटाइटल्ड है, अपना मनरेगा के रोजगार के लिए, बीपीएल के राशन कार्ड के लिए या प्रधानमंत्री आवास योजना के घर के लिए, वो सारी चीजें उसको मिलनी चाहिए। मैं जिम्मेदारी से ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि 62 बच्चे हमने एक पायलट में रेस्क्यू किए, उनमें से केवल एक फैमिली वापस आई सड़क पर। 61 फैमिलीज हम लोगों ने वापस भेजी घर पर। लेकिन शर्त ये कि सीडब्ल्यूसी ने उस जिले की सीडब्ल्यूसी को रिक्वेस्ट किया जहां के वो थे कि भाई इनको घर, इनको राशन, ये लॉकडाउन के दौरान की बात नहीं है, नॉर्मल सिचुएशंस की बात है, इनको सारी की सारी चीजों की व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। अबंडेंट चिल्ड्रन जो है, देखिए जे एक्ट बहुत साफ साफ कहता है, चाहे रन अवे हो चाहे अबंडेंट हो, बच्चे को सड़क पे नहीं होना, सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस होना। सीडब्ल्यूसी सक्षम संस्था है ऑर्डर करने के लिए कि उसको बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए फॉस्टर केयर में जाना है या उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए किसी चिल्ड्रन होम में रखना है और आफ्टर केयर तक रखा जाए। कमीशन के पास एक सेव द चिल्ड्रन करके दुनिया का बड़ा एनजीओ है, उसने एक डेटा हमको दिया 2,13,000 बच्चों का जो स्ट्रीट सिचुएशन में देश के 10 शहरों में। कमीशन बहुत ही तेजी से इस पर काम कर रहा है कि इन बच्चों को वापस सड़क पे ना आने दिया जाए और कैसे इनका रिहेबिलिटेशन हम इंश्योर कर सकते हैं। हमको मदद की जरूरत पड़ेगी आप जैसे कानून के विद्यार्थियों की। और
इसलिए मैं आपके बीच में सारी बात रख रहा हूँ कि इन बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए, इनको ट्रैक करने के लिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी तैयार होती है तो हम आपको इंटर्नशिप में ऐसे काम दे सकते हैं। और इंटर्नशिप के दौरान अगर आप ऐसे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाना या बच्चों का रिहेबिलिटेशन ट्रैक करना, या देश में जितनी स्कीम्स अवेलेबल हैं, एक बच्चे की फैमिली जिसके लिए इंटाइटल्ड है वो मिल रही है या नहीं मिल रही, ये इंश्योर हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी रिपोर्ट्स तैयार करना, तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा फील्ड एक्सपीरियंस होगा और देश के बच्चों के लिए भी बहुत ही हितकर चीज होगी। एक आखिरी बात जो झारखंड ने बहुत ही उम्दा काम किया, झारखंड का अपने तरीके का देश का पहला एक स्टेट रिसोर्स सेंटर है जो ट्रैफिकिंग की प्रिवेंशन पे काम करता है। अभी लॉकडाउन के दौरान 3 दिन पहले मैंने भी वहां इंटरवीन किया, एक बच्चे को उन्होंने दिल्ली से रेस्क्यू किया जो कि ट्रैफिक होके यहाँ पे लाई गई थी। और इस सेंटर ने, जो झारखंड का इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाला डिपार्टमेंट है, वो बहुत ही बढ़िया एक काम किया हुआ है जिसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग। देश की कई जगह हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग की है। वो बच्चे गांव में जो वल्नरेबल हैं, जो लड़कियां आउट ऑफ स्कूल हैं, या जो लड़के सब्सटेंस यूज के विक्टिम्स हैं, या लड़के लड़कियां दोनों ही किसी कारण से अपनी परिवार की परेशानियों के चलते, ऐसा लगता है झारखंड ट्रैफिकिंग का बड़ा अब ऐसा लगता है कि दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, उनको मैप करके रखना और वहां पे उनको प्रिवेंट करना। पोस्ट लॉकडाउन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जब जब आपदा महामारी आई है, ट्रैफिकिंग बढ़ी है, और इस पोस्ट लॉकडाउन सिनेरियो में ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए ऐसी वल्नरेबिलिटी मैपिंग पूरे ईस्ट इंडिया में होना बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आसाम का कोकराझार वगैरह वो इलाका है, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो उसका इलाका है, झारखंड है, ईस्टर्न यूपी के बहुत से हिस्से हैं जहाँ पे बच्चे बहुत वल्नरेबल सिचुएशंस में जीवन जी रहे हैं। और जो सोर्स है, जो डेस्टिनेशन है, और जो पूरा का पूरा रास्ता है, वो रास्ता, वो ट्रेन रूट्स, वो बस रूट्स, उन सब पे ट्रैकिंग की बहुत जरूरत है। इस सब में भी स्टूडेंट्स हमारी मदद कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए खास तौर पे जो बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपको इनवाइट करना चाहूंगा इनफैक्ट, कि ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे आप लोगों की इंटर्नशिप हम लोग करा सकते हैं दिल्ली आके या वहीं रहकर जहां आप हैं। तो प्लीज आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू हमको कांटेक्ट करिए। हमने लास्ट ईयर भी करीब 300 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप अपने यहाँ कंडक्ट कराई थी। इस बार भी हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इंटर्नशिप हमारे यहाँ करें, हम ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, एडवोकेट्स हम तैयार कर सकें देश में। आप सभी ने मुझको बुलाया, सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के कोई सवाल हो, एक दो और वक्त बचा हो, तो प्लीज आप ले सकते हैं। Anyone is having any questions? Sir, we'll post the questions to you and your mail Please. ID. And I will revert the same. Once we receive the questions, we'll, sir. Sir, thank you very much. आपका स्पीच एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है, और आपका ये जो एफर्ट है जो चाइल्ड राइट्स एक्टिविटीज को बनाने का, वो अगर सही सलामत से अगर वर्कआउट हो जाए तो मुझे लगता है कि एक आर्मी टाइप्स बन जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन हमारा विथ ऑल गुड पर्सनालिटी एंड विथ गुड हेल्थ आगे बढ़े, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री आल्सो. थैंक यू वेरी मच, सर. Now I am thankful to my students and supporting staff whose efforts made this event successful. Sir, I would also like to thank all the viewers for joining, whoever have joined this seminar. Now, with your permission, sir, I would like to conclude the session. Yes, ma'am. Sir, with you. Thank you, sir. Thank you very much.